گورنر ہاؤس ہو یا امامیہ کالونی بلکہ پورے پنجاب میں ڈسکا، سیالکوٹ، گجرات، منڈی بہاولدین مختلف مقامات پر آج جمعہ کے بعد احتجاجی ریلیاں ہوئیں قائد ملت جعفریہ کے حکم پر، اور مرکزی اجتماعی دھرنا تمام تنظیموں کی طرف سے گورنر ہاؤس کے سامنے اب بھی جاری ہے۔ ٹھوکر نیاز بیگ میں بہت بڑا دھرنا، بہت بڑا سلسلہ، بہت بڑا احتجاجی ریلی ہوئی۔ ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے تھے مومنین کا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں کوئٹہ کے شہداء کے وارثوں کو، کوئٹہ کے مومنین کو، اور ان شہداء کی بہنوں کو، شہداء کے بزرگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ سنت جناب زینب سلام اللہ علیہ ادا کر رہی ہیں۔ جناب زینب جنازے اٹھاتی رہیں، شام غریباں بابا کو کہہ رہی تھیں، بھائی کو کہہ رہی تھی، بھیا تو نے جنازے اٹھائے، تو مرد تھا۔ آج انہی کی بیٹی ہماری بیٹی معصومہ ہزارہ، میں لاکھ سلام پیش کرتا ہوں اسے۔ وہ کہہ رہی ہے مردوں میں جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، ہم بہنیں جنازہ اٹھائیں گی۔ بیٹی فکر نہ کر، پورا پاکستان موجود ہے آپ کے ان بھائیوں کے جنازے اٹھانے کے لیے۔ یاد رکھ یہ ظلم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، تمہارا نام قیامت تک قائم رہے گا۔ تو زینب کی سنت ادا کر رہی ہے، جناب سکینہ کی سنت ادا کر رہی ہے۔ ہم تمہیں سلام پیش کرتے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب تک جنازے دفن نہیں ہوتے، جب تک بیٹی تیری طرف سے اعلان نہیں ہوتا، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہم خود ان گلی بازاروں میں سڑکوں پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی، فتح حسینیوں کی ہوگی۔ پہلے بھی حسین زندہ باد تھا اور یزید مرد آباد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے شہداء کے لواحقین کو بلیک میلر کہا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں دو فکرے ہمیں تڑپا رہے ہیں، زندہ نہیں رہنے دے رہے۔ ایک بس اس بچی کا یہ کہنا کہ جنازے میں اٹھاؤں گی، مرتے دم تک ہم اس فکرے پر روتے رہیں گے۔ اور دوسرا اس منحوس نے، جس کو لوگ وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں، شرم نہیں آئی اور اس نے کہا بلیک میل، اور بلیک میل کرنے والے سن لے، تجھ سے پہلے کئی آئے یزید، چلے گئے، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ زندہ باد حسینیات زندہ باد، یزیدیات مرد آباد، یزیدیات مرد آباد، دشمن آل محمد پہلانا۔ بس آپ کے سوال کے جواب میں اتنا کہوں گا، ایک خبیث تھا رئیس ثانی، کہتا تھا ٹیشو پیپر دیتا ہوں آنسو صاف کرو۔ کہاں گیا ملعون؟ ذلیل ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ ایک تھا فضل حق، دشمن قائد شہید، گندی نالی پہ اس کی گاڑی کھڑی تھی اور وہ مردود دنیا نے دیکھا۔ اور ایک تھا ضیاء الحق، نام اس کا ضیاء الحق تھا، اصل میں ضیاء الباطل تھا، جس نے سازش کی پورے پاکستان میں، جس کے آج تک آثار موجود ہیں۔ کہاں ہے؟ زمین و آسمان کے درمیان اللہ نے آگ پھینک کے اس کو ذلیل کر دیا ہے۔ عبرت حاصل کر، انہی کے ساتھ تیرا شمار ہوگا عمران خان، انہی کے ساتھ تیرا شمار ہوگا۔ کتنا چھوٹا مطالبہ ہے کہ جمہوری وزیر اعظم صرف آئے، ڈوب مرنا چاہیے تیرے حواریوں کو، تیرے دوستوں کو، تیرے وزیروں کو، تیرے مشیروں کو ڈوب مرنا چاہیے۔ اور تو بڑا سچا اور ریاست مدینہ کا وارث مالک بننے والا تھا، ہمیں تو عجیب قسم کا یہودی نظر آ رہا ہے۔ اپنی عادت تبدیل کر، ملک کو بھی بچا، بلوچستان کو بھی بچا، شیعہ ہزارہ کو بھی بچا۔ ہم منت نہیں کرتے، اس میں تیری بقا ہے۔ اگر تو کوئٹہ نہیں جائے گا تو پھر بالکل ہی جائے گا۔ انشاءاللہ۔
आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शहदाए कोयटा के साथ खड़े हैं, हमारी माएँ बहनें ये अफसोस न करें कि हमारे जनाजे उठाने वाला कोई नहीं, पूरा पाकिस्तान आपके बच्चों का जनाजा उठाएगा। और ये जो कह रहा है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, जनाजे पे बुलाना ब्लैकमेलिंग है? यहूदी नस्ल के पैरोकार, तूने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले मुल्क की हुकूमत संभाली है, तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाना चाहिए। ये तेरा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बका के लिए हासिल किया गया था। ये कौन सी इस्लामी जमहूरियत है कि जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों को ज़बह किया जाए और जनाजे के लिए हुक्मरान कहे कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। सद अफसोस तेरी इस सोच पे। तुझे जनाजे पे नहीं जाना तो बेगैरत तो ये तो ना कहे कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। तू अगर अपनी बका चाहता है, अपने आप को ज़िंदा देखना चाहता है, तो फिर तुझे इन शुहदा के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तुझे इन शुहदा के जनाज़ों पे जाना पड़ेगा। वरना जिसका तू पैरोकार बनना चाहता है या जिसका तू पैरोकार बना बैठा है, 53 मुल्कों की हुकूमत थी उसके पास। कहाँ है वो यजीद? कहाँ है उमर इब्न साद? कहाँ है वो शिम्र? तबाह हो गए, उनकी नस्ल ख़त्म हो गई, वो मकतूअ नस्ल हो गए। अगर बका है तो नाम हुसैन को बका है। इनका जुर्म यही था कि ये हुसैनी थे, इनका जुर्म ये था कि ये अली के मानने वाले थे। और तेरे मुल्क को भी मोहम्मद अली और फातिमा ने बनाया है। बेशक बेशक। और इस मुल्क में अगर मोहम्मद अली और फातिमा के मानने वालों के साथ ये जुल्म सितम जारी रहे तो ये इंशाअल्लाह तबाही की तरफ जाएंगे ये हुक्मरान, ये बर्बादी की तरफ जाएंगे हुक्मरान। यहाँ परचम इस्लाम ही लहराएगा और इंशाअल्लाह ता हुक्म इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये परचम जारी और सारी रहेगा। और हम जब तक कोयटा वाले हमारे बुजुर्गान हमें हुक्म नहीं देते, जब तक शुहदा के जनाजे दफन नहीं होते, ये प्रोटेस्ट, ये धरना, ये एहतजाज जारी रहेगा। लब्बैक या लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। ऐ हमारी दरसगाह करबला करबला, ऐ हमारी दरसगाह करबला करबला, हक का सीधा रास्ता करबला करबला, हक का सीधा रास्ता करबला करबला। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तो ये पैगाम है वक्त के हुक्मरानों को कि अगर तुम्हारे अंदर कुछ इंसानियत है और तुम्हारा ज़मीर ज़िंदा है तो फिर बिस्तर आराम छोड़कर जिस कदर जल्दी हो सके कोयटा पहुंच जाएं और शुहदा के लाशें दफन करवाएं और उनके वर्सा के साथ जैसे हक है वो रहमदिली का वो अदा करें, नहीं तो आप भी यजीद की तरह मिट जाएंगे। उनका भी नाम ज़िंदा रहेगा, जैसे मौला हुसैन का नाम ज़िंदा है, उनके मानने वालों का भी नाम ज़िंदा रहेगा। हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल भी ज़िंदाबाद थे, हुसैन अलैहिस्सलाम आज भी ज़िंदाबाद हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम रहती दुनिया तक ज़िंदाबाद रहेंगे। यजीद लानी लानतुल्लाह अलैह कल भी लानती था, कल भी मुर्दाबाद था, आज भी मुर्दाबाद है और रहती दुनिया तक मुर्दाबाद रहेगा। अब अपने ज़मीर से फैसला कर, तू हमेशा के लिए बका चाहता है या हमेशा के लिए लानत चाहता है। अगर बका चाहता है तो जल्द कोयटा पहुंचकर शुहदा के जितने वर्सा है उनसे माफ़ी भी मांग और शुहदा के जनाजे भी दफन कर। मैंने असर के वक्त ये ऐलान किया था कि धरनों का आगाज़ हो गया है और पूरा मुल्क सील हो जाएगा। उस वक्त हम ठोकर पे पहुंचे थे तो 29 धरने के करीब मगरब के बाद जो है कराची में हो गए, इस्लामाबाद में धरना हो गया,
पिंडी में धरना हो गया, इमामिया कॉलोनी में धरना हो गया, इधर मांगा मंडी में, इसके अलावा मुल्तान और जंग में, तो पूरा मुल्क सील हो जाएगा, फिर तुझे रास्ता नहीं मिलेगा। ये जितनी आवाम जलील और रुसवा हो रही है, ये सारी के सारी मौजब तू है, सबका मौजब तू है, सबकी लानतें तेरे गले पे, तेरे मुंह पे होंगी। लिहाजा तुझे पैगाम देते हैं कि जिस कदर जल्दी हो सके कोयटा पहुंच और 14 के वर्षा से उनके जितने मुतालबात है वो मान और उन्हें दफन करवा। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अंतर देखिए इस वक्त रोडों पे हम सिर्फ मर्द नहीं हैं, औरतें भी हैं, बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और देख हर कौम का फर्द यहाँ मौजूद है। सुन्नी है तो वो भी, वाबी है तो वो भी, देवबंदी है तो वो भी, बरेलवी है तो वो भी, अहले हदीस है तो वो भी, हिंदू है तो वो भी, ईसाई है तो वो भी, ये सारे के सारे तुझे बता रहे हैं अगर तू इंसान है तो जल्दी कोटा पहुंच और उनके वर्षा से माफ़ी भी मांग और शोहदा के लाशें दफन कर और ज़माने को बता दे कि यकीनन मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक मुसलमान हूँ। अगर नहीं पहुँचेंगे तो हम समझेंगे ना तू मुसलमान है ना तू इंसान है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं तमाम जो यहाँ पे मोमिनीन और मोमिनात, मर्द और ख़वातीन इस आधी रात के पहर में मौजूद हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ इन माओं को जो अपने बच्चों के साथ और इन बुज़ुर्गों को कि जो अपने जवान बेटों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और अपना वजूद का इजहार कर रहे हैं उन मज़लूमीन के लिए कि जो कोयटा के अंदर बेदर्दी के साथ जिनको 11 जवानों को के जिन माओं के बेटों को, बहनों के भाइयों को और वालिदैन की औलादों को बेदर्दी के साथ ज़िबा किया गया, उनके साथ इजहार यकजहती करते हुए यहाँ पर सारे जमा हुए हैं। सबसे पहले जो इन्होंने पूछा कि ये धरना कब तक जारी रहेगा और इस धरने की क्या वजूहात हैं, सबसे पहले तो मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उन मज़लूम कोयटा के हज़ारा बरादरी के जो लाशें वहाँ पर मौजूद हैं और माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग वहाँ पर मौजूद हैं, जब तक उनके तमाम मुतालबात पूरे नहीं हो जाते और इमरान खान साहब वहाँ पर नहीं पहुँच जाते, तब तक ये धरना इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। दूसरे नंबर पर बहुत ही दुख की बात है कि इस सख्त सर्दी के आलम में और कोयटा के अंदर जहां -7, 8, 10 तक जो है वो टेम्परेचर है, वहां पर माएँ मौजूद हैं, लेकिन ये बेहिस हुकूमत, ये बेहिस लीडरान जब इनको वोट की ज़रूरत होती है तो ये अवाम के पास जाते हैं और न जाने हर वो गंदा और झूठा सहारा लेते हैं सिर्फ एक वोट की खातिर। कभी रसूल खुदा का नाम लेते हैं, कभी अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं, कभी इमाम खुमैनी की बात करते हैं, कभी रियासत मदीना का नाम लेते हैं, लेकिन 70-75 साल से ये तमाम लीडरों ने, तमाम हुक्मरानों ने इस बात का सबूत दिया है कि वोट लेने की खातिर ये बहुत ही मीठे बन जाते हैं, लेकिन जब मज़लूमीन पर जुल्म किया जाता है, जब तशय्यो को बेदर्दी के साथ ज़िबा किया जाता है और जब पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ की बात आती है तो ये अपने अवानों में, हीटरों में और रज़ाइयों के अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन इनको नज़र नहीं आता कि ये सख्त सर्दी के मौसम में वहाँ पर जाकर एक दफ़ा जाने से क्या हो जाता है, जब वोटों की, इलेक्शनों की बात आती है तब ये पूरे
पाकिस्तान का चक्कर लगाते हैं, गश्त करते हैं और जाके भीख मांगते हैं, लेकिन जब इक़्तिदार की कुर्सी पर आ जाते हैं तो उसी तरह जिस तरह अहले बैत पर जुल्म करने वालों ने अपनी कुर्सी पर बैठकर अपना मसनद अपने हाथ में कर और अहले बैत पर जुल्म किया, ये भी उन्हीं के पैरोकार हैं और आज इस बात का सबूत दे रहे हैं। इनको फ़कत वोट चाहिए, फ़कत वोट चाहिए, इनको इंसानियत नज़र नहीं आती, इनको ये बुज़ुर्ग, ये माएँ बहनें बेटियाँ और इनके लखते जिगर सड़कों पर पड़े नज़र नहीं आते। मैं आखिर में यही कहूँगा, इंशाअल्लाह ये सिलसिला तब तक जारी व सारी रहेगा जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते। इंशाअल्लाह हम तब तक यहीं पर बैठे रहेंगे। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं मशकूर हूँ ये चैनल के एंकर पर्सन का कि जिन्होंने मुझे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का मौका फ़राहम किया। इनका सवाल ये है कि इतनी शदीद सर्दी में आप अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने मासूम बच्चों के साथ, बहन और बेटियों माँओं के साथ आप खुले आसमान तले क्यों बैठे हैं? तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि नजरानाए अश्क गमे शाही नहीं काफ़ी, नजरानाए अश्क गमे शाही नहीं काफ़ी, ये दौर अज़ादार से सर मांग रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, पाकिस्तान में शिया कम्युनिटी की खून रेज़ी मुसलसल जारी है और जब पूछा जाता है कि इनका जुर्म क्या है तो इनका जुर्म फ़कत ये होता है कि ये मज़लूम करबला के अज़ादार होते हैं, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वलायत का दम भरते हैं जिसकी सज़ा उन्हें दी जाती है। तो इसी मुकाम पे मुझे एक जुमला याद आ गया कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत मैसम तैमार हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हमरा जा रहे थे कि मौला अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मैसम, ये जो दरख्त देख रहे हो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे हाथ और पाँव काट दिए जाएंगे, तुम्हारी ज़बान काट दी जाएगी, हत्ता कि तुम्हें शहीद कर दिया जाएगा। मैसम तैमार मुस्करा कर पूछते हैं, मौला मेरा जुर्म क्या होगा? तो जनाब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा जुर्म मेरी मोहब्बत होगी। तो हमने दरसे हयात मैसम तैमार से लिया है, हमारे सिलसिले करबला वालों से जाके जुड़ते हैं। शहादत हमारा विरसा है जो हमारी माँ ने हमें दूध में पिलाया है। हम देख रहे हैं, हम जानते हैं कि कलमाए हक कहने की सज़ा कैदोबंद की सोबते हैं। हमें ये मालूम है, हम कैदों से घबराने वाले नहीं हैं। हमें मालूम है कि बोलने वाली ज़बान को काट दिया जाता है, लेकिन शातिम, गुस्ताख, फस्को फजूर से लबरेज़ हुक्मरानों से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम ये भूल गए हो कि हम करबला के मानने वाले हैं। हमने दरसे हयात करबला वालों से लिया है। अगर हम मरना जानते हैं तो हम मारना भी जानते हैं। ये वतन अज़ीज़ की बुनियादों में हमारे आबा अजदाद का खून है। हमें वतन अज़ीज़ की सालमियत का ख्याल ना हो तो हम सुबह होने से पहले ही ईंट से ईंट बजा सकते हैं। ये बात नहीं है कि हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन बदबख्ती ये है कि हमेशा हुक्मरानों के रवाबत दहशत गर्दों से जाके मिलते हैं। आज ही मैंने टेलीविज़न पे रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान नियाज़ी का ये बयान सुना, जिसे सुनकर, जिसे देखकर तन बदन में आग सी लग गई। उसका कहना था कि हज़ारा कम्युनिटी के मुतालबात गैर आइनी है। उसका कहना था कि वो अपनी तदफीन करें। ये तो एक ब्लैक मेलिंग है। ये ब्लैक मेलिंग नहीं है। कभी
तेरे घर पे कोई जनाजा उठा हो, तुम्हें मालूम हो कि मकतूल बेटे की माँ लाशे पे बैठ के कैसे बयान करती है, मकतूल भाई की बहन का जनाजे के साथ लिपटना कैसा होता है। हमारा ये एहतजाज जैसा कि हम 1400 साल से बर्पा किए हैं, हमने हमेशा हर ज़माने में मज़लूम का साथ दिया है, ज़ालिम के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई दीवार बने हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हमदर्दी, हमारी यकजहती, हमारी मोहब्बत, हमारा साथ, हमारा खून हज़ारा के शहदा के साथ है। जब तक उनके तमाम मुतालबात कबूल नहीं किए जाते, हम धरना दिए बैठे हैं और इंशाअल्लाह कल का सूरज गरूब होने से पहले हम पूरे मुल्क को जाम कर देंगे। इमरान, तुम्हारे इस बयान ने हमारे दिलों को बहुत तकलीफ़ दी है। मुझे अफसोस होता है न्यूजीलैंड में एक शख्स आम फहम मुसलमानों पे दहशतगर्दी करके उन्हें कत्ल करता है, तो एक काफिर मुल्क में काफिरा वज़ीर आज़म बेचैन हो जाती है और मकतूल के वर्सा से जाके गले मिलकर उनसे इज़हार यकजहती करती है, उनके साथ सोगवार हो जाती है। अफसोस, सद अफसोस कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान, जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, उसके हुक्मरान इस बात पे ज़िद करके बैठे हैं कि हम मकतूल के लवाहिकीन के आंसू पूंछने नहीं जाएंगे, हम मकतूल के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती करने के लिए नहीं जाएंगे तावक्त के वो अपने मकतूल को दफन नहीं कर देते। मैं फिर जाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हम हुसैनी हैं, शहादत हमारा विरसा है, हम इंशाअल्लाह शहीद होते रहेंगे, लेकिन अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। आखिर पे मैं 4 लाइनें अपनी कौम के जवानों के खिदमत में पेश करता हूँ। जनाज़े इल्म के कब तक उठाते जाओगे, जनाज़े इल्म के कब तक उठाते जाओगे, मज़ीद सब्र का इजहार खुदकुशी होगी। ये छोड़ो अमन के नगमे, सफ़ें दुरुस्त करो, शिमर मिजाज लाइनों से जंग अभी होगी। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। हमारी ये जवानियाँ हुसैन की कुर्बानियाँ, हमारी ये जवानियाँ हुसैन की कुर्बानियाँ, जो उस्वा रसूल है, हमारा वो असूल है, जो उस्वा रसूल है, हमारा वो असूल है। अली का तर्ज जिंदगी, मुनाफिकत की मौत है, अली का तर्ज जिंदगी, मुनाफिकत की मौत है। तुम किस किस को मरवाओगे? हम सारे कौम हुसैनी, हम सारी कौम हुसैनी है, तुम किस किस को मरवाओगे? हम सारी कौम हुसैनी है, तुम किस किस को मरवाओगे? हम सारी कौम हुसैनी है। हाँ हमारी दर्स का करबला, करबला, हक का सीधा